دیکھیں سامنے، میڈم سامنے دیکھیں، پلیز بھی سامنے دیکھیے گا پلیز. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، نسیم شاہین آڈیٹوریم میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. 8 مارچ کے حوالے سے جو عالمی خواتین دن ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے خواتین مشاعرہ رکھا ہے. ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں گی محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ. میں گزارش کروں گی فاطمہ حسن سے کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. فاطمہ حسن. ڈاکٹر فاطمہ حسن آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہی ہیں. میں گزارش کروں گی اپنی بہت پیاری دوست، سبھی پیاری دوست براہ کرم آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیے. ہمارا اگر آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ اوپر نہیں، صرف اسٹیج پر تشریف لائیے. اور اب ڈاکٹر رینا امرین طارق، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے اسٹیج پر. اور اس کے بعد میں شائستہ مفتی سے گزارش کروں گی کہ براہ کرم آپ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیے. اور ہماری بہت پیاری سی شاعرہ یاسمین یاس، جن سے آپ پہلے بھی مل چکے ہیں، آپ اسٹیج پر تشریف لائیے. عباس سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ اسٹیج. یاسمین آپ ادھر آ جائیے، یہ جگہ ہے، ادھر آ جائیے. زمیندار آپ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے. یقیناً اللہ پاک کے نام سے ہوگا. بلاوت کلام پاک.
حاضرین میں سے کچھ ایسے ضرور موجود ہیں جو یہاں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ یہاں سے واقف ہیں، لیکن جو لوگوں نے جمیل جعلوی صاحب کے ہاتھوں سے رکھی ہے، اس وقت بھی مرحوم جعلوی صاحب درجنوں کتابیں تحریر کرنے کے بعد اور علم و ادب کی بہترین اور مثالی خدمات اور مختلف اہم عہدوں پر اپنا کام مکمل کرتے ہوئے صحت اور عمر کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے جو بستر علالت پر جا کر ختم ہوتی ہے، لیکن جمیل جعلوی صاحب کی فیملی نے ان کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے انجام دیے ہوئے انمول کام اور ان کی زندگی بھر کی جمع کی ہوئی قیمتی کتابوں کو بکسوں میں بھر کر اسٹور روم کی زینت بنانے یا انہیں بیش بہا پیشکش قبول کر کے زندگی بھر کا سرمایہ بیچ دینے کے بجائے اسے ایک لائبریری کی صورت دیں گے اور ان کے کام اور نام کو زندہ رکھا جائے گا۔ یہ ایک بڑے علمی شخصیت کے خاندان کا بہت اہم اور قابل قدر فیصلہ تھا۔ ان کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر خاور جمیل نے اس اہم مگر دقت طلب کام کا بیڑا اٹھایا اور فیملی کی مدد سے ایک عمارت کا نقشہ تعمیر کیا جو عرصے 5 سال میں لائبریری کی صورت میں 2021 کو مکمل ہوئی۔ 14 اگست 2021 کو آزادی کے دن اس کا افتتاح ہوا، مگر 5 سال کے اس عرصے میں جعلوی صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ نسیم شاہی کا آغاز جنوری 2022 سے ہو چکا ہے، لیکن 31 جنوری 2022 کو نسیم شاہی یعنی بیگم جمیل جعلوی صاحبہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کی یاد میں پہلا پروگرام اور مغفرت کے لیے اسی آڈیٹوریم میں ہم سب جمع ہوئے، اور اب علمی اور ادبی تقاریب جاری ہیں جس میں کتابوں کی تعارفی تقریب اور ادب کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس عرصے میں جہاں 1 لاکھ سے زائد کتابوں کی ترتیب لائبریری اصولوں اور اس کے لیے یقیناً جناب محترمہ ڈاکٹر نسیم فاطمہ صاحبہ قابل قدر ہیں اور قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو لائبریری کا عملہ ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ ان لوگوں نے اس 1 سال میں 12 ادب کتابیں چھاپی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک PhD مقالہ جو ان پر تحریر کیا گیا ہے اسے بھی لائبریری کی جانب سے چھاپا گیا ہے۔ یہ کام اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لائبریری میں طالب علموں کو فیضیاب کرنے کے لیے 23 مارچ سے ممبرشپ کا آغاز کیا جائے گا اور انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد طالب علم اپنے ریسرچ کے لیے یہاں آنے لگیں گے اور کتابوں سے مستفید ہوں گے، اور یہ لائبریری بلا کسی معاوضہ طلب کیے ہوئے تمام طالب علموں کو آسانی فراہم کرے گی۔ آج 8 مارچ ہے اور دوسری بار ہم اس آڈیٹوریم میں یہ دن منا رہے ہیں۔ گزشتہ سال جامعہ کراچی کی اولین خاتون وائس چانسلر ڈاکٹر ناصرہ خاتون کو خوش آمدید ہم نے یہاں ہی پہ دیا تھا، اور دیگر مہمان خواتین نے اس دن کے حوالے سے قابل ذکر گفتگو کی تھی۔ آج یہ دن پھر آیا ہے اور ہم نے اس بار کے خواتین مشاعرے کا اہتمام کیا ہے جس میں شہر کی اس ملک کی اور دنیا ادب کی خاتون شاعرہ مہمان مدعو ہیں۔ ہم نے اپنے اس اولین مشاعرے کے لیے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا خاص طور سے انتخاب کیا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ ایک سینئر شاعرہ ہیں، نثر نگار ہیں اور دنیا ادب میں مقبول بھی ہیں اور مشہور بھی، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ فاطمہ حسن کا جعلوی صاحب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس لائبریری کے رہنما ڈاکٹر خاور جمیل صاحب سے برسوں کا ساتھ رہا ہے، اور ان دونوں نے ایک ہی آفس میں کام بھی کیا ہے۔ فاطمہ حسن ہماری بھی دوست ہیں۔ فاطمہ حسن، ہم آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں نے جب فاطمہ کو مشاہدے میں
دعوت دی تو ان کا ایک جملہ یاد رہ جانے والا ہے. وہ بہت مصروف تھی مگر کہا کہ میں آپ کو منع بھی نہیں کر سکتی اور آ بھی نہیں سکتی، لیکن میں ضرور آؤں گی. دیکھیے دوستی اور لحاظ کسے کہتے ہیں. شکریہ. دیگر شاعرہ ہماری دوست بھی ہیں اور یہاں شرکت بھی کرتی رہی ہیں. ہماری ریحانہ ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بخار تھا، اس کے باوجود انہوں نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں نہیں کہوں. ڈاکٹر تنویر انجم پہلے بھی یہاں آئی ہیں، سابق کی حیثیت سے آئی. ہم لوگ کالج میں پڑھاتے رہے، مختلف کالج میں رہے، لیکن دوست رہے. بہت شکریہ تنویر انجم، آپ کی تشریف آئی. شائستہ مفتی پہلی بار آئی ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں گی یا لڑکی کتنے اوپر بیٹھیں گے. ہم نے کہا بس اس سے تو میرا رہا کیا تشریف. یاسمین یاس وہ آ جاتی ہیں چند مشکلات کے باوجود، اور ہنا معین نے تو اس مشاعرے کے انعقاد میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کے آنے کا خصوصی طور پر شکریہ. میں آپ سے واقف نہیں تھی اور آج واقف ہو رہی ہوں. اب آپ یہاں آتی رہی. حاضرین کرام، تاکہ ان شاعرات کا کلام آپ سن سکیں، آپ کی خواہش کے احترام میں یہاں سے رخصت ہوتی ہوں اور مائک ہنا آفرین کے سپرد کرتی ہوں. السلام علیکم. صاحب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود آج اس مشاعرے کی نظامت میرے حوالے کی. ہم یہ دراصل چاہ رہے تھے کیونکہ یہ پہلا خواتین ڈے کے حوالے سے آج منعقد کیے جانے والا مشاعرہ ہے ڈاکٹر جمیل جاذبے فاؤنڈیشن کی جانب سے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ نوشابہ صاحبہ خود اگر نظامت کرتی تو ہمیں بہت اچھا لگتا. بہر کیف خواتین یا عالمی یوم خواتین کے حوالے سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں عورت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو دن ہم مناتے ہیں 8 مارچ کو ہم مناتے ہیں، دراصل یہ جرمنی کی ایک بہت بہادر خاتون تھی کلیرا زیٹکی، جنہوں نے تقریباً 17 ممالک کی ڈیلیگیٹ خواتین کو جمع کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ قرارداد طے کی جس کے نتیجے میں 1918 کو پہلی بار برطانیہ کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا اور 2015 میں جا کر سعودی خواتین کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملا. ہم سمجھتے ہیں یہ دن منانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات باور کرائیں دنیا میں کہ جو خواتین ایک کردار ادا کر رہی ہیں دنیا میں اور ہر کسی بھی معاشرے میں، ان کی اور وہ جائز کردار ادا کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن اس آواز کو سامنے لایا جائے. اور یہ مشاعرہ بھی اسی طرح ہے کہ آزادی اظہار، خواتین کے آزادی اظہار جو ہم یہاں اپنی شاعری میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ کے سامنے آئے، اور جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنی آواز اس آواز میں ملا سکتی ہیں جس پلیٹ فارم پر موجود ہے وہ وہیں سے. اور ہمارے جو مرد سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری آواز سننے کے لیے ہماری آزادی اظہار کے حق میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اب میں کو تقریر تو نہیں کروں گی، شاعری ہی آپ کو سنانا چاہتی ہوں، بس 2-4 الفاظ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتی تھی. دیکھا جو سامنے اسے تحریر کر دیا، دیکھا جو سامنے اسے تحریر کر دیا، میرے قلم کی نوک نے دلگیر کر دیا، میرے قلم کی نوک نے دلگیر کر دیا. اور جن سے امید صبح نے پائی تھی روشنی، جن سے امید
शायरा को दावत देते। ये मैंने कब कहा सारा जहां बर्बाद कर दूंगी, ये मैंने कब कहा सारा जहां बर्बाद कर दूंगी, मगर एक दिन मैं खुद को खुद से ही आजाद कर दूंगी, मगर एक दिन मैं खुद को खुद से ही आजाद कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद की किरणें यकीन हर पल दिलाती हैं, मुझे उम्मीद की किरणें यकीन हर पल दिलाती हैं कि अब तक जो न कर पाई मैं कुछ दिन बाद कर दूंगी, कि अब तक जो न कर पाई मैं कुछ दिन बाद कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। मेरे जज्बों की शिद्दत तुम नहीं समझे तो फिर एक दिन, मेरे जज्बों की शिद्दत तुम नहीं समझे तो फिर एक दिन गदर ऐसा मचाऊंगी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, गदर ऐसा मचाऊंगी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ना मैं अपने ख्वाबों की फजा से खुश रही तो फिर, ना मैं अपने ख्वाबों की फजा से खुश रही तो फिर सजा कर दिल मोहल्ला एक नगर आबाद कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। ये शायरा आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मौजूद है यहाँ कराची यूनिवर्सिटी ही की उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालिबा जो बहुत अच्छी शायरा है। हमने कई नशिस्तों में इनको सुना है, बहुत प्यारे और दिलकश शेर कहती है। मैं ज़रनिगार अब्बास साहिबा को मदद कर रही हूँ। कुछ आपसे गरज न गिला हाथ छोड़िए, अब जाने दीजिए मुझको मेरा हाथ छोड़िए। कुछ आपसे गरज न गिला हाथ छोड़िए, अब जाने दीजिए मुझको मेरा हाथ छोड़िए। मिलने लगा है आज तखय्युल नया मुझे, मिलने लगा है आज तखय्युल नया मुझे, लिखना है मुझको शेर नया हाथ छोड़िए। मिलने लगा है आज तखय्युल नया मुझे, लिखना है मुझको शेर नया हाथ छोड़िए। मैं ज़हमतें उठाने को तैयार थी मगर उसने ये कह दिया कि मेरा हाथ छोड़िए। मैं ज़हमतें उठाने को तैयार थी मगर उसने ये कह दिया कि मेरा हाथ छोड़िए। सब अपने अपने हाथ को बस देखने लगे, सब अपने अपने हाथ को बस देखने लगे। मजमे में मैंने उससे कहा हाथ छोड़िए। सब अपने अपने हाथ को बस देखने लगे, मजमे में मैंने उससे कहा हाथ छोड़िए। और ये नजर चुरा के जो अब गुफ्तगू हुई है ना, नजर चुरा के जो अब गुफ्तगू हुई है ना, तू सच बता के मोहब्बत तो वाकई है ना। नजर चुरा के जो गुफ्तगू हुई है ना, तू सच बता के मोहब्बत तो वाकई है ना। बुरा न मान मुझे कुछ नजर नहीं आता, बुरा न मान मुझे कुछ नजर नहीं आता, करीब से तेरी तस्वीर देख ली है ना। बुरा न मान मुझे कुछ नजर नहीं आता, करीब से तेरी तस्वीर देख ली है ना। और तू साथ चल तो ये साया करेंगे छत की तरह, तू साथ चल तो ये साया करेंगे छत की तरह। अभी अभी तो परिंदों से बात की है ना, तू साथ चल तो ये साया करेंगे छत की तरह। अभी अभी तो परिंदों से बात की है ना। मैं खुद को बेच भी आऊँ तो ये नहीं मिलती, मैं खुद को बेच भी आऊँ तो ये नहीं मिलती। तेरी खुशी मेरी औकात से बड़ी है ना। मैं खुद को बेच भी आऊँ तो ये नहीं मिलती, तेरी खुशी मेरी औकात से बड़ी है ना। मुझे अब अपने मदीने में दर बदर कर दे, मुझे अब अपने मदीने में दर बदर कर दे। मुनाफिकों से बहुत तेरी दोस्ती है। बहुत अच्छा यूँ ज़रनिगार और हमारे शहर की ताज़ा आवाज़। आप भी बहुत सारी शायरात की तरह बीच में इतना छोड़ के गायब ना हो जाए। तो शायरी को आगे बढ़ाते हुए
अज़ल से ही सफ़र में हूँ और इतना जान पाई हूँ। अज़ल से ही सफ़र में हूँ और इतना जान पाई हूँ, मेरा होना हकीकत है, रिवायत कुछ नहीं है। अज़ल से ही सफ़र में हूँ और इतना जान पाई हूँ, मेरा होना हकीकत है, रिवायत कुछ नहीं होती। हमें वाहन जो रखे झूठ वो अच्छा मेरे हमदम, हमें वाहन जो रखे झूठ वो अच्छा मेरे हमदम, दिलों को तोड़ने वाली सदाकत कुछ नहीं है। हमें वाहन जो रखे झूठ वो अच्छा मेरे हमदम, दिलों को तोड़ने वाली सदाकत कुछ नहीं होती। और हम सफर वो बने तो पूरी हूँ, हम सफर वो बने तो पूरी हूँ, वरना हर काम पे अधूरी हूँ। हम सफर वो बने तो पूरी हूँ, वरना हर काम पे अधूरी हूँ। इसलिए कदर ही नहीं करता, इसलिए कदर ही नहीं करता, जानता है कि जी हुजूरी हूँ। इसलिए कदर ही नहीं करता, जानता है कि जी हुजूरी हूँ। वो समझता है वो ज़रूरी है, वो समझता है वो ज़रूरी है, मैं समझती हूँ मैं ज़रूरी हूँ। वो समझता है वो ज़रूरी है, मैं समझती हूँ रोशनी से बहुत दूर रहते हैं, रोशनी से बहुत वो जो डरते हैं, आग ही से बहुत खुद नुमाई जिन्हें पसंद नहीं, खुद नुमाई जिन्हें पसंद नहीं, वो तो रहते हैं सादगी से बहुत, जान देते हैं इसलिए तुम पर, जान देते हैं इसलिए तुम पर, प्यार करते हैं जिंदगी से बहुत, प्यार करते हैं जिंदगी से बहुत, जिनका शेवा हो दुश्मनी करना, जिनका शेवा हो दुश्मनी करना, खौफ खाते हैं दोस्ती से बहुत, खौफ खाते हैं दोस्ती से बहुत। मैंने सीखा तो बस यही सीखा, मैंने सीखा तो बस यही सीखा, सब्र बढ़ता है तृष्णगी से बहुत, सब्र बढ़ता है तृष्णगी से बहुत।
साथ मजबूती हो। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में और हमारे कॉलेज में और हम इसके लिए शुक्रिया हैं। सारे किताब शायरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नौशाबा सिद्दीकी साहिबा। और साहिब सदर की इजाज़त से अच्छा, आप ऑडियंस में मेरे कॉलेज के बहुत पुराने क्लास फेलो भी मौजूद हैं और जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ रहे मकसूद, वो उनको ये गज़ल मेरे कॉलेज के ज़माने की गज़ल, उनको ये गज़ल बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं मोटिवेट करना चाहूँगी यार कि अंधेरी रात में अशकों से झिलमिलाए गज़ल, अंधेरी रात में अशकों से झिलमिलाए गज़ल, मैं चुप रहूँ तो वही बात गुनगुनाए गज़ल, सरापा नूर बना है ये चांदनी का सफ़र, सरापा नूर बना है ये चांदनी का सफ़र, इन्हीं फिज़ाओं में धीरे से मुस्कुराए गज़ल, मैं ज़िंदगी की सहर ढूंढने चली हूँ मगर, मैं ज़िंदगी की सहर ढूंढने चली हूँ मगर, शिकस्ता रूह लिए साथ साथ आए गज़ल, तेरे ख्याल का परतौ मेरे ख्याल की आँच, तेरे ख्याल का परतौ मेरे ख्याल की आँच, हजार रंग लिए शाम गुनगुनाए गज़ल, बिछड़ न जाए कहीं रास्ते मनाजिर के, बिछड़ न जाए कहीं रास्ते मनाजिर के, चिराग बन के अंधेरे में जगमगाए गज़ल, बहुत अजीज़ है मुझको बहार के मौसम, बहुत अजीज़ है मुझको बहार के मौसम, बहार आए तो रंगे दिए जलाए गज़ल। अच्छा, उसके अलावा एक छोटी सी गज़ल और आपको फिर मैं इधर जो माल खाऊंगा उधर तो होना था, चली थी सीधी हवा बेकरार की मौजें, चली थी सीधी हवा बेकरार की मौजें, सुकूते शब्द ये साहिल भंवर तो होना था, और बहुत से दोस्त थे और शहर भी शनासा था, बहुत से दोस्त थे और शहर भी शनासा था, तुम्हारे शहर में उधर उधर तो होना था, वो एक अश्क का कतरा नमक ही था लेकिन, वो एक अश्क का कतरा नमक ही था लेकिन, मगर जो दिल पे गिरा था असर तो होना था, और न पूछ कैसे पता चल गया ज़माने को, न पूछ कैसे पता चल गया ज़माने को, का इश्क मुश्क का किस्सा खबर तो होना था। ये आखिर में एक बस नज़म सुना के फिर इसका नाम है आज लगता है समंदर, जाने किस शहर से आया ये तूफान बला, ये जो तूफान जिसपे है अगर ख्वाबों के टूटते ख्वाब है उंगली सी गुजरता, आके दामन पे ठहरता हुआ बेकल शिकवा, चुप सी शादी है मेरे घुटने मगर आंखों में, चुप सी शादी है मेरे घुटने मगर आंखों में, मेरे हर ताज महल की है हकीकत वाज़े, जिसमें रहती है वो शहजादी जिसे कुदरत ने, जिसमें रहती है वो शहजादी जिसे कुदरत ने दिल धड़कता हुआ बख्शा है बदन पत्थर का। मैंने देखा है कि वो रात के अंधियारों में अपने ख्वाबों के महल खुद ही जला देती है, अपने टूटे हुए पर खुद ही छुपा देती है, अपने अश्कों के दिए खुद ही बुझा देती है, खुद ही अपने लिए लिखती है सदाओं की किताब, अपने हाथों से छुपा देती है जख्मों के गुलाब। आज लगता है समंदर में है दुनियानी सी, आज लर्जिश सी है पैरों में थकन सांसों में, आज लर्जिश सी है पैरों में थकन सांसों में, किरचियाँ चुभने लगी हैं जो मेरी आंखों में, आज लाजिम है कि चुपचाप गुजर जाए शाम, कोई आहट न दस्तक नहीं छलके कोई जान, आज आईने से टकरा के गुजर जाना है, आज आईने से टकरा के गुजर जाना है, आज शब घोर अंधेरे में उतर जाना है, फिर नया दिन नई मुस्कान जगा लाएगा, फिर नया दिन नई मुस्कान जगा लाएगा, शब का तूफान किनारों से उतर जाएगा, आज लगता है समंदर में।
خدا کی عورت ہی ہے جس کی وجہ سے اس کائنات میں رنگ و بہار ہے. اگر عورت کا وجود نہ ہو تو سب کچھ ادھورا ہے. شادی رنگ سب کچھ. ہماری اگلی شاعرہ میرا راحت صاحبہ 4 شہری اردو کی خالد ہیں. اسی یونیورسٹی میں اردو میں ایم فل کر رہی ہیں. ان کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. بہت اچھے بہانے آ گئے ہیں, بہت اچھے بہانے آ گئے ہیں, ہمیں آنسو چھپانے آ گئے ہیں. جاتی ہے میرا راحت. بہت شکریہ جناب اور صاحب سروس کے لیے اجازت چاہیے. شکریہ. سب سے پہلے 2 شعر آپ سب کی نظر. میں ساری عمر کبھی یہ نہ کہہ سکی کہ میں ہوں. میں ساری عمر کبھی یہ نہ کہہ سکی کہ میں ہوں. بتا رہی ہے مگر میری شاعری کہ میں ہوں. میں ساری عمر کبھی یہ نہ کہہ سکی کہ میں ہوں. بتا رہی ہے مگر میری شاعری کہ میں ہوں. میں اپنے غم سے گلے مل کے جب اداس ہوئی. میں اپنے غم سے گلے مل کے جب اداس ہوئی تو میری ماں کی دعا نے تسلی دی کہ میں ہوں. میں اپنے غم سے گلے مل کے جب اداس ہوئی تو میری ماں کی دعا نے تسلی دی کہ میں ہوں. اور اب نظر کے کچھ اشعار. خواتین آج خواتین کا عالم دن منایا جا رہا ہے کے حساب سے. آوازوں کی بھیڑ میں ایک دن گویا آئی ہو بیٹھو گی. آوازوں کی بھیڑ میں ایک دن گویا آئی ہو بیٹھو گی. یوں ہی سچے لفظ لکھے تو بینائی ہو بیٹھو گی. آوازوں کی بھیڑ میں ایک دن گویا آئی ہو بیٹھو گی. یوں ہی سچے لفظ لکھے تو بینائی ہو بیٹھو گی. شہرت کچھ دیتی ہے لیکن شہرت کچھ لیتی بھی ہے. شہرت کچھ دیتی ہے لیکن شہرت کچھ لیتی بھی ہے. شہرت کے پیچھے بھاگی تو تنہائی ہو جاتی ہے. شہرت کچھ دیتی ہے لیکن شہرت کچھ لیتی بھی ہے. شہرت کے پیچھے بھاگی تو تنہائی ہو بیٹھو گی. عورت ہونا جرم تمہارا, جرمانہ تو بھرنا ہے. عورت ہونا جرم تمہارا, جرمانہ تو بھرنا ہے. در اس سے انکار کیا تو انگنائی ہو بیٹھو گی. عورت ہونا جرم تمہارا, جرمانہ تو بھرنا ہے. در اس سے عشق میں کیا کچھ ملتا ہے. آنکھ سے خواب کا رشتہ کیا ہے, عشق میں کیا کچھ ملتا ہے. اس پر غور کیا تو ساری دانائی. آنکھ سے خواب کا رشتہ کیا ہے, عشق میں کیا کچھ ملتا ہے. اس پر غور کیا تو ساری دانائی ہو بیٹھو گی. بس میں سخن میں ملنے والی, اور یہ خاص کر کے نئے شعرا سے, بس میں سخن میں ملنے والی داد و ستائش اپنی جگہ. بس میں سخن میں ملنے والی داد و ستائش اپنی جگہ. لیکن تم اشعار کی اپنے گہرائی ہو بیٹھو. بس میں سخن میں ملنے والی داد و ستائش اپنی جگہ. لیکن تم اشعار کی اپنے گہرائی ہو بیٹھو گی. اور ایک اور نظر کہ مجھے شاہ زندگی چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. زندگی چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. ہم اسی
लिया जाता है। आप समझते होंगे मैं रजनी साहिबा की बात कर रही हूँ और पढ़ा रही हैं कराची यूनिवर्सिटी किया। उनका पहला शेरी मजमुआ 1986 में मंजर-ए-आम पर आया और फिर उसके बाद कई मंजर-ए-आम पर आते हैं। नज़म का हवाला रफ्तार शरणबेज़ी में दिल तेज करूँगी, एक शब्द में उसे खंजरे गुरेज करूँगी। वो दस्ते नवाज़िश में गिरफ्तार करेगा, वो दस्ते नवाज़िश में गिरफ्तार करेगा, जब पेश उसे मैं दिलों खेज करूँगा। वो दस्ते नवाज़िश में गिरफ्तार करेगा, जब पेश उसे मैं दिलों खेज करूँगा। शमशीर अजल काट रही है मेरे दिल को, शमशीर अजल काट रही है मेरे दिल को, पैमान है रोज़ को लबरेज करूँगा, पैमान है रोज़ को लबरेज करूँगा। एक रात शबस्तान में वो दिलबर नहीं होगा, एक रात शबस्तान में दिलबर नहीं होगा, मैं किश्ते रमे हिजर को ज़रख़ेज़ करूँगा। एक रात शबस्तान में दिलबर नहीं होगा, मैं किश्ते रमे हिजर को ज़रख़ेज़ करूँगा। अंदेशे फ़ुरक़त मुझे महबूस रखेगा, अंदेशे फ़ुरक़त मुझे महबूस रखेगा, इरफ़ान गमे मौसमे गुरेज़ करूँगा, इरफ़ान गमे मौसमे गुरेज़ करूँगा। खुशबूए हवास अंदेशे फ़ुरक़त मुझे महबूस रखेगा, इरफ़ान गमे मौसमे गुरेज़ करूँगा। खुशबूए हवास मेरे मंज़र में शामिल, खुशबूए हवास मेरे मंज़र में शामिल, इस मंज़र मुश्किल को दिलावेज़ करूँगा, इस मंज़र मुश्किल को दिलावेज़ करूँगा। ये कैद रहेगी मुझे ज़िंदाने तलब में, ये कैद रहेगी मुझे ज़िंदाने तलब में, वहशत तो शराबे तरब अंगेज़, रफ्तार शरणबेज़ी में तेज़ करूँगी, एक शब्द उसे खंजर गुरेज़ करूँगी। तो हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू करने के लिए आंसू बहने दो। मुझे इंतज़ार कर लो 20 बरस तक, फिर हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू मेरी सिन्फ के बारे में, मेरी सिन्फ के बारे में तुम्हारी लतीफ़ों की ज़मीन अमरोयात की ज़मीन कैसी है। निकालो कोई नया या सदियों पुराना लतीफ़ा, महसूस करो मुझे जैसे तुम करते हो एक्सचेंज में कारोबार करते हो, या खातून सियासतदानों के बालों के अंदाज का तज़किया करते हो। चुप क्यों हो जाते हो मुझे देखकर, सुनाओ मुझे भी एक लतीफ़ा, ताकि मैं हंसूं और तरक्की कर सकूं तुम्हारी दुनिया में, फिर बना सकूं तुम्हारे बारे में लतीफ़ों की ज़मीन, अमरोया की ज़मीन की तरह, और सुनाया करूं उन्हें सिर्फ अपनी सिन्फ के ग्रोहों में, और चुप हो जाया करूं जब गलती से तुम दाखिल हो जाओ मेडिकल कॉलेज में
स्टॉक एक्सचेंज में या हमारे पार्लियामेंट में। पहुँचाना चाहते हैं कि आज़ादी इंसान हर औरत का बुनियादी हक है। मुकाबले में कुछ उनसे ऊंची उड़ान की है ये शेर और ऐसे कई अशार की खाले हमारे साथ तशरीफ फरमा हुई। रेहाना रूही साहिबा किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। दुनिया भर में इन्होंने मुशायरे और शेर के हवाले से सफ़र किया और मुशायरे पढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उर्दू का नाम रोशन किया और ख़वातीन की आवाज़ पहुँचाई, पाकिस्तान में ख़वातीन की आवाज़ पहुँचाई। तो मैं दरख्वास्तगुज़ार हूँ रेहाना रूही साहिबा से तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर तो मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, मेरे कभी बहुत अच्छा शेर। तो मैंने कहा मुझे मुझसे इस पर तारीफ की कि ये शेर तुम्हारा हो गया। मेरे कबीले के कुछ परिंदे सुना है इस बात का सफा में के मुकाबले में कुछ उनसे ऊंची उड़ान की। बहुत शुक्रिया हिलाल, बहुत मोहब्बत से और तफसील से मैंने माशाअल्लाह इस मुशायरे को आगे बढ़ाया, चलाया, सबका बेहतरीन तारुफ किया। निज़ामत उसको तो इस तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। निज़ामत कार की बहुत जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हिना, उसके बाद जागरी लाइब्रेरी की हमारी माशाअल्लाह जिन्होंने इस लाइब्रेरी को सजाया, संवारा, बनाया, शाबाश सिद्दीकी, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हर एक वो कोशिश करती हैं कि ज़रूर इस लाइब्रेरी को मोतबर बनाया जाए। जो भी खास इवेंट हो उसके हिसाब से कोई ना कोई प्रोग्राम हो। और अगर आप जानते हैं कि अभी नई भी है, बहुत सारे लोगों का स्पेक्ट्रम में नहीं है, तो यहाँ ऑडियंस का जमा करना ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल हौसला नहीं आना चाहिए। और माशाल्लाह जिस तरह वो परेशान हो रही थी आज के लिए, तो मैं तो बहुत सारे ऑडियंस माशाल्लाह देख रही हूँ। इधर में अच्छे ऑडियंस हो, इतने हो तो बहुत होते हैं ये, तो मैं बड़ी मुबारकबाद देती हूँ। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पर अगर मेरे हॉल में बैठी हुई एक ऐसी अदब नवाज या ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अदब को बहुत इज्जत दी, मैं उनको ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ, उनको सलाम करना चाहती हूँ। हमारे भाई राहत भाई, पूरा नाम क्या है आपका? फरहतुल्लाह कुरैशी। देखिए जिस इंसान सीरीज पे होता है उसका दिमाग मालूम हुआ होता है, तो नाम मेरे दिल में आने लगे नहीं आ रहा। फरहतुल्लाह कुरैशी साहब, तो वो देखिए यहाँ वाले जितने भी ज़्यादातर ऑडियंस यही के हैं, लेकिन इस मुशायरे के लिए फरहत भाई हम सबकी हौसला अफजाई के लिए बाहर से बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए। मैं चाहती हूँ कि हमने हमारे सीनियर सामने आप इस उसके बावजूद यहाँ मेरे सीनियर के हिसाब से मिलेगा। और बहुत सारे होंगे जो शक्ल नहीं जाती, याद आई उसमें मैं भी सुनाती हूँ, आपको पेश करती हूँ। कभी होता है ना कि कोई कुछ कहता है तो आपको कुछ बात नहीं चले जाते हो, तो उसके इशारे में ख़वातीन के दिन के मौके पर भी लिखे थे कि कलाम पेश करने के लिए मैं अपनी प्यारी दोस्त मेरी हमारे से दिल पर वक्त कर सकते हैं कि वो माशाअल्लाह इस मकाम पर है। सदारत हमारे यहाँ हमेशा हमारी हौसला मेरी हौसला अफजाई करती हैं। जगह हमारी बड़ी बात है, इससे कोई किसी को देता नहीं, लेकिन कहीं जगह मेरे नाम का जिक्र कर दे तो मेरे अंदर जल्दी तवाना नहीं आती है, इसका कोई मोड़ नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इजाज़त से चलना चाहते हैं। मेरे नज़र ख़वातीन के हवाले से के ऊपर प्रोग्राम
کہ میں ہوں، ملتی نہیں جب تک مجھے پہچان کہ میں ہوں، میں کہتی رہوں گی اللہ، میں کہتی رہوں گی اللہ کہ میں ہوں، اور اب کس لیے تم میری نفی کرنے لگے ہو؟ اب کس لیے تم میری نفی کرنے لگے ہو؟ تم نے ہی بتایا تھا میری جان، کس لیے تم میری نفی کرنے لگے ہو؟ تم نے ہی بتایا تھا میری جان کہ میں ہوں، اور وہ دن جن کا دیا میرے مقابل نہیں جلتا، وہ جن کا دیا میرے مقابل نہیں جلتا، وہ جان کے ہو جاتے ہیں انجان، وہ جان کے ہو جاتے ہیں انجان کے میں ہوں، اور آنکھی نے بجھانا کو بہت چاہا تھا، لیکن آنکھی نے بجھانا کو بہت چاہا تھا، لیکن یہ ماں کی دعاؤں کا ہے فیضان، یہ ماں کی دعاؤں کا ہے فیضان کہ میں ہوں۔ اور یہ شعر دیکھیں، یہ میں نے واقعے میں لکھا اس قدر کو کہنے کے بعد، اور واقعہ اپنی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک جو بزم سجائی ہی نہیں مجھ سے چھپا کر، جو بزم سجائی ہی گئی مجھ سے چھپا کر، اس بزم میں دشمن میں رہنے لائے، جو بزم سجائی ہی گئی مجھ سے چھپا کر، اس بزم میں دشمن میں رہنے لائے، اور تحریر میں در سب سے سفر لاؤں گی روحی، تو خلق بھی لے آئے گی ایمان، چلے شاعروں کے دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے، میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانتی ہوں، میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانتی ہوں۔ بھائی سوشل میڈیا ہے تو بہت بنا دیا نا، یہاں رہتے ہوئے بھی کیا حقوق ہے، اور عورت کے گھر سے انسان کیا حقوق ہے، تو دیکھو بیٹے بھی چلے جا رہے ہیں وہ کا رخصت، بیٹے بھی چلے جاتے ہیں وہ کا رخصت، صرف بیٹی کو ہی مہمان کر سکتا ہے، مہمان نہ سمجھا جائے، اور میری فاطمہ میری پہچان کو کافی ہی ہے میری شراب، اس میں میں آپ سب کی مدد سمجھا جائے، کیوں میرے ساتھ باپ دادا کو نام لڑائے جاتے ہیں، کیوں میری پہچان کو کافی ہے اگر میری شراب، پھر مجھے کیوں میری پہچان نہ سمجھا جائے، میں نے یہ کب کہا ہوگی کہ میرے سائی کو دیکھیے سب غصہ کر کے ایسے بدل جائے گا، کیونکہ سب جب یاد آ رہا ہے گھر جانا ہے، گھر بھی تو جانا ہے، تو پھر یہ شعر کہتی ہوں میں کہ مجھ سے کس نے کہا روحی، مجھ سے کس نے کہا روحی میرے سائی کو، میں نے یہ کب کہا روحی کہ میرے سائی کو میرے جیون میں میری جان نہ سمجھا جائے، تو شاعر اس کے بعد یاد رکھوں گی کہ سفر میں رستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے، اور آپ کے نام لینے کے سفر میں رستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے، شخص چہرہ بدلنے کے فن سے واقف ہے، اور ہوئی ہے چشمے شناسا بھی اجنبی ہوئی ہے چشمے شناسا بھی اجنبی، تو خدا کے آن رشتہ بدلنے کے
मत करना, सुनी सुनाई पे एकदम यकीन मत करना, ये खल्क किस्सा बदलने के मन से आते हैं, ये खल्क किस्सा बदलने के मन से आते हैं। उसी के पास हुकूमत है कबीले की, उसी के पास हुकूमत है कबीले की कि जो कबीला बदलने के मन से आते हैं, और जो कबीला उसी के पास हुकूमत है कबीले की कि जो कबीला बदलने के मन से आते हैं। और आखिरी शेर ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम लोग भी बहसीत शायद कभी कभी कोई शेर पसंद करते हैं, तो ये मेरी अपनी नज़र में मेरा पसंदीदा शेर, किसी को पिंजरा बदलने का शौक है मुझे, किसी को पिंजरा बदलने का शौक है मुझे, कोई परिंदा बदलने के किसी को पिंजरा बदलने का शौक है मुझे, कोई परिंदा बदलने के है, उम्मीद है चश्मे शनासा बेज़ली तो खुदा के हाथ रिश्ता बदलने के मन से आते हैं। आज का ये मुशायरा पर तेजी से खाते की जानी बढ़ रहा है और अब हम डॉक्टर फातिमा हैं और इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल कराची में जो एक शाहकार लाइब्रेरी है जो वजियाबाद लाइब्रेरी को उनके ताउन और उनकी पैटर्नशिप के बगैर शायद ही मुमकिन होगी। एक बहुत ही नुमाइंदा गज़ल का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी तो माइक देने से पहले, वो है कि मंसूब है इंसान से जितनी भी फज़ाइल, मंसूब है इंसान से जितनी भी फज़ाइल, अपनी भी नहीं मेरे भी अखबार हो रही है। इसके साथ ही मैं गुजारिश करती हूँ फातिमा हसन साहिबा से बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और बड़ी खूबसूरत महफिल है, यहाँ ज़रूर आना चाहिए था। यहाँ पर हमारी डॉक्टर नसीम फातिमा भी बैठी हुई हैं और नौशाबा भी, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह इस इदारे को संवारने में बड़ा किरदार अदा किया है। और लाइब्रेरी के नाम से डॉक्टर साहिबा की खिदमत नहीं भुलाई जा सकती, इनका एक बहुत नुमाया नाम है लाइब्रेरी साइंस के हवाले से। और नौशाबा सिद्दीकी वो हैं कि जिनसे हमारा पहला नाता भी मुशायरे ही से हुआ था और अभी तक अदबी रिश्ता इतना मजबूत है कि दीगर रिश्ते पर हावी आ जाता है। हम तमाम शायरात ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया और मैं जो हमेशा ईसाई शऊर की बात करती रही हूँ, इनके शऊर पर खुश भी हूँ, फख्र भी महसूस कर रही हूँ और उस सफ़र को भी देख रही हूँ जो हमने मैंने तो सन 1975 में बाकायदा ईसाई शऊर के हवाले से लिखना शुरू किया था। जब पहली मरतबा पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया था, तो उसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी मैक्सिको में, जब इस दिन को इंटरनेशनल विमेन डे डिक्लेयर किया गया था। तो उस वक्त एक नस्ल कही थी, मुझे तनवीर जहाँ मौजूद है तो मैं एक नस्री नज़्म से ही शुरू करूँगी जो सन 1975 में ख़वातीन के आलिया जो मैंने बड़े शौक़ से लगाए थे। आवाज़ से बढ़कर मेरे बचपन का खौफ दोहराते हैं, हंसती है और कहती है मेरी गोद तुम्हारे लिए पहुँच चुकी है। मैं माँ से कहती हूँ ये पेड़ जो मैंने बड़े शौक़ से लगाए थे, आवाज़ से बढ़कर मेरे बचपन का खौफ दोहराते हैं, वो हंसती
बार सामने कर लेती हूँ और उसकी ढूंढी निगाहें वियतनाम की तस्वीरों में उलझ जाती हैं। वो धीरे से कहती है, जब से अगवा तक की खबरों में क्या तुमने कोई अमन का इश्तिहार नहीं ढूंढा? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ बोलते देखकर बहुत खुश हुई कि अब मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहती हूँ। तो ये 75 की बात थी जब माएँ बेटियों की पनाह में आना चाहती थी और बेटियों को ये सिखाती थी कि उंगली पकड़ के चलो। तो अब माएँ बहुत बाशऊर हो गई है। तो एक और जरूरी सुनाती हूँ जो मैंने अपनी बेटी के लिए, बल्कि सारी बेटियों के लिए ये लिखी थी कि मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। संगे मिल पे हिंसों की पहचान से आगे, आते जाते रस्तों के हर नाम से आगे पढ़ना सीख गई। संगे मिल पे हिंसों की पहचान से आगे, आते जाते रस्तों के हर नाम से आगे पढ़ना सीख गई। जलती बुझती रोशनियों और रंगों की तरतीब, सफर की संतों और गाड़ियों के पहियों में उलझी राहों पर आगे बढ़ना सीख गई। जलती बुझती रोशनियों और रंगों की तरतीब, सफर की संतों और गाड़ी के पहियों में उलझी राहों पर आगे बढ़ना सीख गई। मेरी बेटी दुनिया के नक्शे में अपनी मर्जी के रंगों को भरना सीख गई। मेरी बेटी दुनिया के नक्शे में अपनी मर्जी के रंगों को भरना सीख गई। मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। और अब मैं दो तारीख खामोश है, लेकिन अब औरतें मनवा रही हैं कि नहीं, हम आपके साथ साथ उतने ही शरीक थे तहसील में, तमद्दुन में और दुनिया को बनाने में। और आगे भी अगर कोई उम्मीद है तो अभी से वापस कर कीजिए। तो ये गज़ल है कि रूई के गाले से धागे का सफर मेरा ही था। रूई के धागे से गाले का, रूई के गाले से धागे का सफर मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था। धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लफ्ज़ है, धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लफ्ज़ है। दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था, दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था। और पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था, साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था। और जिसके आंगन को सजाया हाथ से और फूल से, जिसके आंगन को सजाया हाथ से और फूल से, खुशबू की राह में उनका उदर मेरा ही था। खुशबू, जिसके आंगन को सजाया हाथ से और फूल से, खुशबू की राह में उनका उदर मेरा ही था। और जिस जगह नफरत न हो और जुल्म की ताकत न हो, जिस जगह नफरत न हो और जुल्म की ताकत न हो, आपकी सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था, आपकी सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था। अब उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, जल न जाए फिर कहीं धरती के डर मेरा ही था, जल न जाए फिर कहीं धरती के डर मेरा ही था। और अपनी शेरे गोद में मेरी जन्म लेती रही है जिंदगी, गोद में मेरी जन्म लेती रही है जिंदगी, जिंदगी को जिंदगी करना हुनर मेरा ही था, जिंदगी को जिंदगी करना हुनर
काले से धागे का सफर मेरा ही था और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था। और अब मुझे गजल इसका एक शेर आज मैंने सुनाया है। आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। मलबूस बदन देखे रंगीन कबा में, अब पैर हमें जात इजहार में देखे। मलबूस बदन देखे रंगीन कबा में, अब पैर हमें जात इजहार में देखे। और सौ रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आओ, सौ रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आओ, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखे, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखे। और पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखे। पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखे। और रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, पीछे हो कहाँ से रफ्तार में देखे, पीछे हो कहाँ से रफ्तार में देखे। मंसूब है इंसान से जितने भी फसाए, मंसूब है इंसान से जितने भी फसाए, अपने ही नहीं मेरे भी अखबार में देखे। मंसूब है इंसान से जितने भी फसाए, अपने ही नहीं मेरे भी अखबार में देखे। कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, लाए थे हमें आप भी बाजार में देखे, लाए थे हमें आप भी बाजार में देखे। और आखिरी शेर है, उस काबिल मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस काबिल मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी में मार में देखे, तामीर की खूबी उसी में मार में देखे। आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। बहुत शुक्रिया। जी मुशायरा बेगम नसीम शाहीन ऑडिटोरियम में मुनाकिद किया गया। इसमें आज इस मुशायरे के जरिए हमने ये तारीफ की कायम कर दी कि ख़वातीन के आलमी दिनों के हवाले से मुनाकिद होने वाले इस मुशायरे में न सिर्फ आज़ादी इज़हार पर हमने बात की, बल्कि बिला तफरीक ये बात की कि आज के इस मुशायरे में तमाम तरह शायरात शायर ख़वातीन हैं और मर्द हमें दाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम आज़ादी से अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैं मुशायरे के खात्मे का ऐलान करने के साथ साथ मुहतरमा शाबा सिद्दीकी से मुस्तक़बिल हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बाकी कार्रवाई को करना चाहती हैं रिवायत के मुताबिक। जितने के मेहमान वतनदार होते हैं, और इस मौके पर तो हमारे तमाम आठों दोस्त जिन्होंने अशार सुनाए और आपको महसूस किया और आपने दाद भी दी, मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मुझे तो इन्हें हमेशा बुलाना है और हमेशा ही शुक्रिया अदा करना है और इन्हें तो हमेशा ही आना है। ये एक तरह की ऐसी रिवायत है हमारी दोस्ती है और ख़ासतौर से एक शायरात का अगर मैं जिक्र करूँ, याद में ख्याल है हमारा
राहत है, भयानक नहीं है। फातिमा हसन है, तकरीर है और शाइस्ता है, यास्मीन यास है, उनका दिगार है, बारी फकन आप सबके अमल का शुक्रिया। हम इसके बदले इससे मोहब्बत दे सकते हैं, एक छोटी सी शील्ड भी दे सकते हैं जो आपको याद रहेगा कि आप कहाँ आई थी। ये उसका कोई मोल नहीं है जो आपने यहाँ सुनाया और हमने सुना। सबसे पहले तो मैं नसीम फातिमा साहबा को से गुजारिश करूँगी जो बड़ी मुश्किल से भी आ पाएगी कि वो यहाँ आ जाए और मेरा लाइब्रेरी का स्टाफ जो है यहाँ आ जाए, क्योंकि हमने जैसा मैंने शुरू में कहा कि 12-13 किताबें हमने एक साल के अरसे में छापी हैं और ये इन लोगों की मेहनत है। सो जमील जालवी लाइब्रेरी की शाया शुदा कुतुब इस वक्त हम डॉक्टर फातिमा हसन को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं कि ये जोश मलिहाबादी और भी आज और आप बिलाल यस मैडम, सामने देखिएगा प्लीज। वेट। शायरी के वास्ता जीवन के जीवन की जानिब से कवर किया जा रहा है। सामने देखेंगे मैडम, सामने। वेट। Yes, ready. Thank you. इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये सामने देखिए, सामने देखें। ये सामने देखिए प्लीज। ये स्टडीज सामने देखिएगा प्लीज। वेट। ये सब सामने देखेंगे प्लीज। कौन है ब्लू? चाय जी मैम।